So good evening, friends. Myself Vinay Rajani and Avinash. Thanks for such a nice and detailed introduction about me. I am very thankful to Spider Academy that they have given me the opportunity to share HDFC retail research view for the markets and the indicators and oscillators that we use to track for monthly and weekly analysis. So it is very important to know what we should do from for the tracking the different indicators, oscillators, and what unique thing we can do apart from our daily exercise in the research. So we will discuss about the identifying the trend reversal. It is very important to identify the trend reversal in the markets first, and we do different type of intermarket analysis, and there are some indicators, oscillators that we use to predict the next future for the market, and accordingly we can take bet aggressively on the some stock specific, sector specific approach. So since this webinar is organized and conversation should be English and Hindi both, what I would try to do is that I will explain the theory part in the English and will go through the practical example of my theory in Hindi, so that we will have all have a better understanding about the topic that we are discussing. So let us directly jump to the slides. So friends, today's agenda is to discuss, and in the webinars are like I would give a brief introduction about my career journey, understanding the breadth indicators, especially the number of stocks about 200 days moving average. Then we will discuss about some unique indicator like disparity index and MFI like money flow index for identifying reversal and momentum both. Then we will discuss about the seasonality charts. Then I'll take you through the FIA long to short ratio analysis, on the basis of which we can identify nice reversals in the market. Then we will track one of the sentiment indicator we use to track, and which is very helpful in identifying the trend reversal for the market. We will also do some intermarket analysis. What is the importance of intermarket analysis in identifying the trend of the market? That we will discuss, and we will go through different asset classes and around the world and correlation between all asset classes, so that we can get overall picture about the market in the coming time. Then we will have a short view on Indian markets, the where are they headed for the short term. On the basis of that, we will discuss some rationals also, and I will share my view and HDFC Securities retail research view on the market in the very short term. So let us directly jump to the topics. I'm switching over my this camera. So before I start, I would like to, yeah. So sorry to interrupt you. So you are audible. I wanted you to use both the language, Hindi plus English, so that will be more comfortable to the audience. So you can use both the I will do. language. Yeah. As I said that I will share my theory part in English and speak practical example in Hindi. तो yes, मैं definitely try करूँगा कि दोनों language का use कर सकें, जिस तरह से सभी audience को अच्छी तरह से समझ में आए. Should I go ahead, Avinash? Yes, sir. You should go. Yeah. So friends, जैसे ही हमने बात किया कि हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिस इज अ निफ्टी वीकली चार्ट ऑन स्पाइडर सॉफ्टवेयर. अभी जैसे हम सब जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में निफ्टी मेड अप ऑल टाइम हाइट अराउंड 18,600 ऑड लेवल्स, और उसके बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वाज देयर ऑन द वीकली चार्ट. यहाँ पे हमने देखा था कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन ने बहुत ही अच्छा काम किया, विच वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एडजॉइनिंग दी October 2021 high and then January 2022 high. If we adjoin this trend line, this was a clear cut resistance from where it found and reverse on the south side, and it was also a doji candlestick pattern that we already know. So doji candlestick pattern on the resistance line, it was a clear cut indication that market should go down, and it actually acted very well. तो यहाँ से एक वापस से एक continuation of a downtrend हुआ. अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मंथ है वो है जून 2022 का, 2 मंथ पहले की मैं बात कर रहा हूँ. हमने देखा था फ्रेंड्स के मार्च महीने में 15,700 का एक मेजर बॉटम बनी थी, और वहां से निफ्टी बढ़ गया था 18,000 की ओर. वहां से वापस हम गिरे और निफ्टी ने बॉटम बनाया 15,700 के करीबन. तो टेक्निकल जो सिंपल एनालिसिस हम देखते हैं तो 15,700 पे हम बोल सकते हैं कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, जहां पे एक होप जगी थी मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता है. लेकिन मार्केट मेड एन अनदर लोअर टॉप अराउंड 16,800 ऑड लेवल्स, और 16,800 से वापस से ये इंडेक्स गिरा
और इसने 15,700 का जो डबल बॉटम का सपोर्ट था इट एक्चुअली ब्रीच्ड। अब यहाँ पे इस तरह का कैंडल पड़ना और 15,700 का टूटना, ये क्लियर कट एक सेल सिग्नल था हमारे लिए। हम अगर आरएसआई जो ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं डेली और वीकली चार्ट पे, तो ये वीकली चार्ट पे अगर हम आरएसआई देखते तो आरएसआई वाज आल्सो मेकिंग लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, तो ये भी एक सेल सिग्नल में ही था। एमएससीडी देखें तो उसने भी अपने सिग्नल लाइन और इक्विलिब्रियम लाइन के नीचे की तरफ का ट्रेंड दिखाया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्लियर कट एक फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडर और टिपिकल टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे बात करेगा कि ये मार्केट जो गया इसमें बहुत बड़ी फॉल आ सकती है और मार्केट कुड गो डाउन टू 14,000 12,000 ऑड लेवल, तो ऐसी बातें आने लगी थी। लेकिन ऐसी कुछ इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उस टाइम पे ऐसा दिखा रहे थे कि वी शुड नॉट गो एग्रेसिवली शॉर्ट बिकॉज सम डेवलपमेंट वाज देयर which were showing the positive divergence in the index and probable bottom in the index। आज का जो सेशन है, जो वेबिनार है, उसमें यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेटर ऑसिलेटर्स हैं, कौन से सीजनलिटी चार्ट्स हैं जिसको देख के हमको ऐसा लगा कि मार्केट में डाउनसाइड लिमिटेड है और बॉटम में भी नजदीक है और वहां से मार्केट वापस से घूम सकता है। तो कभी ना कभी जब भी मार्केट में बॉटम बनती है तो टेक्निकल कोई भी इंडिकेशन होता है उसको गलत करके ही वो फॉल्स ब्रेकआउट करके ही वापस से ट्रेंड रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जून 2022 में एक सिंपल एनालिसिस के तौर पे क्लियर कट सेल सिग्नल था, लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जून 2022 में वी सॉ दैट निफ्टी मेड अ लो एंड 15,200 के करीबन निफ्टी ने बॉटम बनाई और वहां से कंटिन्यूअसली वी हैव रीच टू द लेवल अबव 17,500। तो फ्रेंड्स मोर देन 15% राइज हमने बहुत ही कम पीरियड में देखा। तो एक क्लियर कट ट्रैप हुआ जहां पे हम बेयर ट्रैप बोल सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन किया वीकली चार्ट पे, 15,700 का लेवल तोड़ा, 500 पॉइंट जितनी गिरावट आई और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी 16% 15% का राइज इन निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 19% का राइज है और मिड कैप इंडेक्स में करीबन 21% का राइज है इस पीरियड के दौरान। तो जून की बॉटम से अभी तक का जो लेवल है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया और बहुत ही फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट फील हुआ है, काफी ट्रेडर्स ने अपॉर्चुनिटीज मिस की है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्या इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हमने देखे थे जिसके बेसिस पे we were of the opinion that we should not go short at this point of time and actually we should start accumulating the good quality stocks and sectors which can outperform the overall markets। so मैं अभी प्रेजेंटेशन में वो शेयर करना चाहूंगा। So one of the indicator जो हमने देखा था वो था नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 DMA। दिस इज अ ब्रेथ इंडिकेटर जहां पे ब्रेथ जो होता है वो ओवरऑल हेल्थ दिखाता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उस एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई, न्यू ऑल टाइम हाई, अगर वो अच्छा जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी मार्केट अप जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ काफी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेथ इंडिकेटर, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। ये एक ऑसिलेटर है जो एक कॉन्ट्रेरियन के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे ओवरसोल्ड ओवरबॉट सिनेरियो देखा जा सकता है, जहां पे आरएसआई एमएससीडी की तरह डाइवर्जेंसेस भी देखे जा सकते हैं। बट इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूनिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक शॉर्ट में जो भी मैंने प्रेजेंटेशन में कवर किया, आई वुड लाइक टू रीड इट आउट सो दैट यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। The percentage of stocks trading above specific moving average is a breadth indicator that measures the internal strength or weakness in the underlying index. This indicator measures the degree of participation. Breadth is strong when the majority of stock in the index are trading above the specific moving average. So friends, हम जानते हैं कि कोई भी स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो हम उसको एक बुलिश व्यू देते हैं, और जब भी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता है तो हम बेरिश व्यू देते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात हुई। A bullish bias is present when the indicator is above 50%. So अगर हम NSE 500 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो 500 स्टॉक्स में से अगर 250 स्टॉक से भी ज्यादा स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का है, क्योंकि ब्रेथ सपोर्ट कर रही है। अगर यही नंबर 50% से नीचे है तो वी कैन से दैट के ओवरऑल मार्केट इज नॉट दैट गुड बिकॉज ब्रेथ इज नॉट सपोर्टिंग। So this is the one way of looking at this indicator. Second way of looking at this indicator is traders can look for overbought and oversold level। तो कुछ लेवल से ज्यादा अगर स्टॉक्स अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं, अगर हम देखते हैं कि NSE 500 इंडेक्स में से 480 500 में से 480 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं, तो एज ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर हम इस पे एक सेल व्यू भी बना सकते हैं, एक ओवरबॉट मार्केट बता सकते हैं। और अगर कोई स्टॉक्स अपने 200 डीएमए से कुछ स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं जो नीचे आ गए हैं, लाइक 500 में से लेट्स से 490 स्टॉक्स ऐसे हैं कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं, जैसा 2008 में हमने देखा था, तो वहां पे भी एक
बाइंग आती है, एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, क्योंकि एक लेवल के बाद मीन रिवर्जन होता है और मीन रिवर्जन इसी को एक एवरेज के पास पहुंचा देता है। तो इसको एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर के तौर पे भी ले सकते हैं। थर्ड इज दी बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसीज, जैसे हम आरएसआई, स्टोकेस्टिक, सीसीआई और दूसरे सब इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस देखते हैं, इसी तरह से इस इंडिकेटर पे भी डाइवर्जेंस देखा जा सकता है। अभी हम प्रैक्टिकली मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से जून 2022 जहां पे 15,200 का निफ्टी का लेवल था, वहां पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि देयर आर सम डेवलपमेंट व्हिच कैन रिवर्स द ट्रेंड फॉर द निफ्टी एंड दैट कुड बी सिग्निफिकेंट आल्सो। तो ये नीचे ऊपर का जो चार्ट है वो एनएससी 500 का प्राइस चार्ट है। अभी जो ये नीचे जो सेकंड इंडिकेटर है वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए। अभी फ्रेंड्स हम जानते हैं कि देखिए आप ये जो लेवल है जहां पे मैंने पॉइंट रखा है वो था जून 2022 का बॉटम। अभी यहाँ पे जो स्टॉक का जो लेवल, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए थे वाज 14%, 14% स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर थे। अभी हमने देखा था 2020 में जब पेंडेमिक आया था, दिस नंबर वेंट डाउन टू एज लो एज 8%। ये एक ब्लैक स्वान इवेंट थी, एक रेयर इवेंट थी जहां पे हमने एक महामंदी के संकेत देखे थे, इसलिए एक पैनिक इवेंट बोला गिना जाता है। लेकिन हम अगर 2018 की बात करें तो एंड ऑफ द 2018 ये नंबर 14% पे आके ही रुका था और वहां से घूम के मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया था, यानी कि ब्रेक का बॉटम बन गया और वहां से ओवरऑल मार्केट के जो नंबर पार्टिसिपेंट्स है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करने लगे। ये था 2018। अभी देखते हैं 2016। आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग ऑफ द 2016 एक जनवरी फरवरी मंथ में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बड़ा फॉल आया था। उस पीरियड के दौरान भी नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए पहुंच गए थे 14% पे, जो अभी भी जून 2022 में हमने देखा था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2013 एंड टुवर्ड्स दी 2011, तो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने अच्छे खासे करेक्शंस मार्केट में देखे हैं, 2011, 13, देन 16, देन 18 एंड देन 2020। तो 5 में से 4 ऑब्जर्वेशन ऐसे थे कि 14% एक बॉटम बन जाता था, जहां पे 14% 15% नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए होते थे, वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता था। तो ये एक सिग्नल हमने देखा जून 2022 में। तो वहां पे प्राइस गिर रहा था, पैनिक हो रहा था, दुनिया भर से नेगेटिव न्यूज आ रहे थे, वॉर की बात चल रही थी, रिसेशन की बात चल रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। उस पीरियड के दौरान ये इंडिकेटर 14-15% पे जब पहुंचा, तब हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ पे एक एग्रेसिवली शॉर्ट जाना नहीं चाहिए और जो भी शॉर्ट है वो काट देना चाहिए, क्योंकि एक्यूमुलेट अगर यहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर अभी की बात करें तो ये नंबर अभी इंप्रूव होके 48% पे पहुंच गया है। दैट मींस इन एनएससी 500 48% of the stocks are above their 200 DMA, which is a good sign. From the 14% we have moved to the 48%. Now अभी अगर ये नंबर जैसे ही 50% के ऊपर जाएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्रेथ का जो ओवरऑल सिनारियो मार्केट का है वो ब्रेथ वाइज भी एक काफी सपोर्ट मिल गया और एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में वापस से हम एंटर हो चुके हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी वापस से एक ऑल टाइम हाई बनाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है। वी विल डिस्कस अबाउट अदर इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स आल्सो, जिससे हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। नाउ अभी एक दूसरा इंडिकेटर है डिस्पैरिटी इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। दोस्तों हम आरएसआई, एमएससीडी, एडीएक्स और काफी सारे इंडिकेटर्स जो हम फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, उससे ये हटके हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी हटके है और काफी कम ट्रेडर्स और एनालिस्ट लोग इसको यूज करते हैं। जितना इंडिकेटर ज्यादा एनालिस्ट लोग या ज्यादा ट्रेडर लोग यूज करेंगे उतना ही वो कॉमन हो जाता है, उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी गलत पड़ने की ज्यादा हो जाती है। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और काफी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिसको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ द इंडेक्स इज द डिस्पैरिटी इंडेक्स एंड द सेकंड इज द मनी फ्लो इंडेक्स। पहले डिस्पैरिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो डिस्पैरिटी इंडेक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई एंड एमएससीडी used by technical analysts that indicates the direction an asset is moving relative to moving average। तो कोई भी स्टॉक की प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से कितना दूर अभी प्लेस कर रही है। अगर डिस्पैरिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि स्टॉक की प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से दूर जा रही है ऑन दी अपसाइड, और अगर डिस्पैरिटी इंडेक्स डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक की प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जा रही है नीचे की ओर। तो इसमें भी हम डाइवर्जेंसीज देख सकते हैं, इसमें भी हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स देख सकते हैं, जो मैं आई विल शेयर यू थ्रू द चार्ट्स आल्सो, तो उसमें आपको ज्यादा इंडिकेशन मिलेगा। और सेकंड है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स एक आरएसआई की जैसा ही इंडिकेटर है जिसमें प्राइस बेस्ड अप डेज और डाउन डेज का रेशियो निकालते हैं, बट इसमें हम एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड करते हैं जो वॉल्यूम होता है। तो अप डेज का वॉल्यूम और डाउन डेज का वॉल्यूम, इसको कॉम्बिनेशन करने के बाद
जिस तरह का इंडेक्स बनता है जहां पे हम एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड डाइवर्जेंसेस डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स को फ्यूचर में ले सकते हैं, उसके लिए हम मनी फ्लो इंडेक्स ट्रैक करते हैं। और अभी आपको मैं चार्ट में शेयर करूंगा तो वी विल हैव अ बेटर आइडिया। नाउ लेट मी शेयर वन चार्ट ऑफ डिस्पैरिटी इंडेक्स। नाउ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये 15,700 का बॉटम बना था, ये था पीरियड मार्च 2022। अगेन इन मई 2022 15,700 पे आया, यहाँ से बाउंस किया और वापस से ये नीचे आया और 15,700 के लेवल हमने टूटते हुए देखा और 15,200 के लेवल आ गए। अभी ये नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि RSI, दिस इज दिस डिस्पैरिटी इंडेक्स ऑफ 20 डेज मूविंग एवरेज। तो मैंने 20 दिन की मूविंग एवरेज यूज की है एज ए पैरामीटर फॉर डिस्पैरिटी इंडेक्स, और हम देख रहे हैं कि जो 15,700 का जो बॉटम बना था तब ये डिस्पैरिटी इंडेक्स था -6 के लेवल पे, और उसके बाद जो 15,200 का बॉटम बना, जो लोअर बॉटम था, लोअर टॉप था, उसके बाद हमने देखा कि डिस्पैरिटी इंडेक्स ने जो लेवल बनाया वो -5 का बनाया। तो ऑब्वियसली फ्रॉम -6 इट हैज मूव टू -5। सो दिस इज कॉल्ड अ टिपिकल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो हम RSI और MACD और काफी सारे इंडिकेटर में देखते हैं। लेकिन हम RSI MACD में देखेंगे तो इतना कन्विंसिंग आपको नहीं लगेगा, लेकिन 20 डेज मूविंग एवरेज का डिस्पैरिटी इंडेक्स ने क्लियरली हमने इंडिकेट किया था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, सो वी शुड नॉट शॉर्ट एटलीस्ट। दूसरा जो इंडिकेटर मैंने बात की थी वो है MFI इंडिकेटर, तो वो जिसको निफ्टी फ्यूचर पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। मैंने ये वीकली चार्ट ओपन किया है निफ्टी फ्यूचर का। अभी सिर्फ मैं आपको इसको मनी फ्लो इंडेक्स डाल के मैं दिखाऊंगा, जो स्पाइडर में एक इंडिकेटर के तौर पे दिया गया है। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हम सब जानते हैं कि सभी ट्रेडर एक कंसोलिडेशन की वेट करते हैं कि अगर प्राइस में कंसोलिडेशन है और वो कंसोलिडेशन में से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया तो वो तुरंत ही उसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करने जाते हैं, या तो अगर नीचे की साइड का ब्रेकआउट आता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड करने जाते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या ये हम जानते हैं कि ये सिर्फ प्राइस में पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है एक इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स पे भी कंसोलिडेशन पॉसिबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमने कंसोलिडेशन नहीं देखा, ये पूरा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और निफ्टी फ्यूचर चार्ट। अगर हम यहाँ से ये अगर इंडिकेटर देखें मनी फ्लो इंडेक्स जो 10 पीरियड का है, यानी कि ये 10 वीक का मनी फ्लो इंडेक्स है, तो ये एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था फ्रॉम द पीरियड ऑफ दिसंबर 2021 टू मई 2022। तो इस पीरियड के दौरान इट्स अ क्लियर कट, यू कैन से कंसोलिडेशन, जहां पे यहाँ प्राइस वाइज कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं है, बट दिस वाज अ क्लियर कट कंसोलिडेशन। जैसे ही जुलाई मंथ की शुरुआत में ये कंसोलिडेशन में से वीकली चार्ट पे हमने ब्रेकआउट देखा, तभी हमने देखा कि मोमेंटम विल राइज फ्रॉम हियर, और जिस तरह से हम प्राइस पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा थे वैसे ही ब्रेकआउट हमने देखा था MFI इंडिकेटर पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, वी शुड नेवर मिस एंड वी शुड ऑलवेज अप्लाई ऑन द फ्यूचर चार्ट, बिकॉज जो अंडरलाइन को हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसको बाय सेल कर सकते हैं, उसी पे इसको देखना चाहिए। निफ्टी स्पॉट या बैंक निफ्टी स्पॉट पे आप ये इंडिकेटर अप्लाई नहीं कर सकते। So this was in the early July month of 2022. This was a clear-cut buy a signal from the MFI indicator. That is why this was the another confirmation which we got that we can take a aggressive long bets with a rising momentum. So ये एक लेवल था जहां पे निफ्टी 16,200 16,300 पे चल रहा था। वहां पे लग रहा था कि ये स्टॉक इंडेक्स जो है वो 16,800 और उसके बाद काफी ऊपर जा सकता है। तो दिस वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर इन विच we got some confirmation. Now let us move ahead. अभी एक दूसरा जो हम एक एस्पेक्ट देखते हैं, हमने एक ब्रेथ इंडिकेटर बात कर ली, अभी हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए देखे। एक दूसरे टाइप ऑफ चार्टिंग है जो हम रेयरली यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सीजनलिटी चार्ट्स। तो दोस्तों, आपने अभी सुना होगा कि सांता क्लॉज रैली, जब भी दिसंबर आता है तो मार्केट में ऐसा बोलते हैं, यूएस मार्केट में स्पेशली, कि भाई सांता क्लॉज रैली आ सकती है। तो एक एक ये एक कहवत है, एडेज है, हम मानते हैं। तो एक ये एक सुना होगा, और दूसरा सुना है सेल इन मई एंड गो अवे, तो मई महीने में बेच दो और बाद में साइड में हो जाओ, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? बोथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स केम फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर सर्टेन टाइम्स इन द ईयर व्हेन द स्टॉक मार्केट टेंड्स टू ओवर और आउट परफॉर्म। तो कुछ पीरियड ऐसे होते हैं कि जब भी मार्केट एक सीजन वाइज एक अच्छा परफॉर्म करता है या बुरा परफॉर्म करता है। एनी प्रेडिक्टेबल चेंज और पैटर्न इन द टाइम सीरीज दैट रिकर्स और रिपीट्स कैन बी सेड टू बी अ सीजनल। जो सीजन वाइज रिपीट होता है जो भी पैटर्न, उसको हम सीजनलिटी चार्ट्स के तौर पे गिनते हैं। एवरी मार्केट एक्सपीरियंसेस पीरियड्स ऑफ आइदर ग्रेटर सप्लाई और डिमांड थ्रू आउट अ ईयर, एंड इट इज दिस
forces that drive seasonal patterns. Seasonality allows us to establish these periods to give us indication ahead of a time how a market could perform in the near future. अभी दोस्तों जैसे ही मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा किस तरह से सीजनलिटी चार्ट को ट्रैक करना चाहिए, उसके ऊपर से आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि व्हाट शुड वी डू टू गेट द आइडिया अबाउट इन द फ्यूचर. So this is a typical seasonality heat map chart. दोस्तों मैंने इसमें सेंसेक्स का मंथली परफॉर्मेंस लिया है. वी हैव द हिस्ट्री फ्रॉम 1993. तो अगर 1993 से लेके सेंसेक्स का मंथली परफॉर्मेंस देखने जाएं तो हर मंथ का हमारे पास सेपरेट एक परफॉर्मेंस डेटा है जिसको हमने एक शीट में डाल के हीट मैप के तौर पे आपको दिखाया है. तो फ्रेंड्स जून में बॉटम बनी, अभी जुलाई में सबसे बड़ा कि जुलाई मंथ में क्या हो सकता है. तो इसमें देखिए एज वी ऑल नो दैट अगर मंथ वाइज की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बेस्ट मंथ अगर लास्ट 29 इयर्स में रहा है तो दिसंबर मंथ रहा है, जिसका एवरेज रिटर्न ऑफ last 29 years in the month of December has been more than 3%, which is the best performing month. अगर हम हिस्ट्री देखने जाए जुलाई की तो जुलाई हैज बीन द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ. तो जब भी जुलाई मंथ की शुरुआत हुई थी जहाँ पे एमएफआई डिस्पेरिटी इंडेक्स और नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए का इंडिकेशन हमको मिला, तो हमने देखा कि सीजनलिटी चार्ट में क्या हो रहा है. तो हमने देखा कि जुलाई इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ. अभी हम जुलाई मंथ की ही बात करें तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं 1993 से लेके 2022 तक का डेटा है और एवरेज रिटर्न ऑफ जुलाई मंथ वाज 1.76%. अभी इसमें हम क्या देख सकते हैं, अभी देखने जाए सिंपल एक सक्सेस रेशियो की बात करें तो ये आउट ऑफ दिस 29 इयर्स हम देखने जाएं तो सिर्फ 9 टाइम में जुलाई मंथ ने नेगेटिव रिटर्न दिया है फॉर द सेंसेक्स और 20 टाइम्स सेंसेक्स हैज गिवन पॉजिटिव रिटर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सक्सेस रेशियो पॉजिटिव रिटर्न देने का 69% का है, विच इज फेयरली गुड कंपेयर टू दी अदर मंथ्स. तो एक तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि 69% इज अ गुड इनफ सक्सेस रेशियो फॉर गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न. अब दूसरी चीज हम देखने जाएंगे जो यूनिक हुई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. दिस इज 2022 पीरियड, अप्रैल मई एंड जून. अप्रैल मंथ में -2.6% रिटर्न था सेंसेक्स का मंथली, मई 2022 में -2.7% अगेन एंड जून मंथ में अगेन 4.6% नेगेटिव रिटर्न. ये कंसेक्यूटिव बैक टू बैक 3 महीनों से नेगेटिव रिटर्न दे रहा था सेंसेक्स. अगर हम हिस्ट्री में देखने जाए 29 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बैक टू बैक 3 मंथ्स में सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो. तो ऐसा पहली बार हुआ था. जैसे ही 3 मंथ्स कंसेक्यूटिव नेगेटिव रिटर्न देने के बाद ऑब्वियसली जुलाई मंथ में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे भी आप कॉइन टॉस करते हैं तो आप एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर 5 बार हेड आया तो 6 बार जो टेल आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा है कि एक इवेंट वापस से हो चुका है, जैसे जैसे वो होता जाता है तो उसका ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं. तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून सेंसेक्स गिव नेगेटिव रिटर्न and that therefore the probability of giving positive return in the month of July was increased so much, and as a result what happened, we saw that Sensex gave a return of 9% in the month of July 2022. So एक यूनिक ऑब्जर्वेशन हमने देखा था खास करके अप्रैल में जून मंथ बैक टू बैक नेगेटिव रिटर्न, और ओवरऑल सक्सेस रेशियो जुलाई मंथ का काफी पॉजिटिव था. और दूसरी बात ये थी कि जुलाई हैज बीन द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ फॉर द सेंसेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ 29 इयर्स. तो दिस इज कॉल्ड सीजनलिटी चार्ट जो हमको ट्रैक करना चाहिए. इससे हमको ओवरऑल व्यू आएगा दोस्तों. ये आपको ट्रेडिंग में मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको अगर ओवरऑल व्यू लेना है मार्केट के ऊपर तो दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर. अगेन दिस इज अनदर इंडिकेटर. हमने जैसे ब्रेथ इंडिकेटर अभी डिस्कस किया, उसके बाद हमने सीजनलिटी चार्ट इंडिकेटर डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेंटीमेंट इंडिकेटर जो यूएस में खास करके ट्रैक किया जाता है. एक एजेंसी है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो अपना वीकली सर्वे करती है. वो ट्रेडर्स को और एनालिस्ट लोग को एक सर्वे के दौरान पूछती है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपका व्यू क्या लग रहा है, वेदर मार्केट विल मूव अपसाइड फॉर S&P और इट विल मूव साइडवेज और इट विल मूव गो डाउन. तो इस तरह का वीकली सर्वे किया जाता है और उसी को एक हम प्लॉटिंग करते हैं चार्ट्स के ऊपर, और उसके बेस पे जानने का ट्राई करते हैं कि अगर सेंटीमेंट वीक है या बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है, उसके बेस पे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वेयर आवर मार्केट इज हेडेड. सो फ्रेंड्स, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एक डेटा है. ये आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है इट्स अ बेरिश सेंटीमेंट लाइन. ये जो लाइन है वो इंडिकेट करती है कि 40% ऑफ द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और यू कैन से एनालिस्ट
are expecting market to move down from here in the next 6 month. अभी ये ग्रीन जो लाइन है वो दिखा रही है कि 28%, which is lower than the bearish ones, but bullish लोग जो हैं वो 28% व्यू रख रहे हैं कि जो मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करेगा। और ये जो ब्लू लाइन है which is nothing but those who are holding the neutral view for the market। अभी इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है और किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है वो बताता हूँ। So friends, this is a sentiment survey. It is an contrarian indicator. Above average market returns have often followed unusually low levels of optimism, while below average market returns have often followed unusually high level of optimism. तो फ्रेंड्स, अगर जब भी हम देखें कि अगर ये रेड लाइन बेरिश सेंटीमेंट रखने वाले लोग अगर ज्यादा है मार्केट में, तो वो एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में पेसिमिज्म बहुत बढ़ गया है और मीन रिवर्जन हो सकता है। दैट मींस सिनेरियो उल्टा हो सकता है। इसके बेस पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन कुछ लेवल के ऊपर अगर बुलिश की कंपैरिजन में बेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एक साइन होता है कि वहां से मार्केट अपसाइड रिवर्स हो सकता है। और वैसा ही कुछ हमने देखा अप्रैल, मई, जून मंथ में। हम देख सकते हैं कि जून मंथ में करीबन less than 15% of the people were expecting a bullishness in the market, while in if we talk about the bearish sentiment, almost more than 60% of the people were expecting market to go down in next 6 months। तो ये भी एक साइकोलॉजी इंडिकेट करता है कि लोग ज्यादा पेसिमिज्म में आ गए थे एंड मार्केट काफी एक ओवर सोल्ड सिनेरियो में चला गया था। तो एक सेंटीमेंट इंडिकेटर भी बहुत काम आता है, लोगों की साइकोलॉजी इसमें आती है और उसके बेस पे भी हम एक व्यू ले सकते हैं। दूसरा एक ये है कि जो ब्लू लाइन है जो न्यूट्रल व्यू दिखाती है। तो दोस्तों, इफ ब्लू लाइन, दैट न्यूट्रल व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट, इफ इट इज मूविंग अप, यानी ज्यादातर लोग न्यूट्रल व्यू रख रहे हैं, दैट मींस दे आर नॉट श्योर वेदर मार्केट विल गो अप और डाउन। तो अगर ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, ज्यादा लोग न्यूट्रल हैं, वो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है। तो इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, वी शुड ट्रैक इट। एंड इसको आप जैसे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे हिसाब से अभी भी ये इंडिकेटर ऐसा दिखा रहा है कि अभी भी बेरिश सेंटीमेंट रखने वाले लोग ज्यादा हैं कंपेयर टू बुलिश, और यही चीज हमको यूएस मार्केट को हेल्प करेगी आगे अपसाइड रिकवरी दिखाने में। तो इट इज राइट नाउ इंडिकेटिंग दैट मार्केट शुड फेयर वेल, स्पेशली इन द यूएस मार्केट। तो ये एक यूएस का डेटा है जो यूएस मार्केट का ट्रेंड दिखा रहा है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द डोमेस्टिक मार्केट, हमने काफी कुछ देखा था डेरिवेटिव साइड से भी जो जून 2022 में हुआ था और जो हमको कॉन्फिडेंस दिया कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में रिवर्स हो सकता है सब। तो ये इंडिकेटर है एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो। तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ज्यादा लॉन्ग कर रही है और शॉर्ट पोजीशंस कितना कैरी कर रही है उसका हम डेटा मेंटेन करते हैं, जो एनएससी की पार्टिसिपेंट्स डेटा में से हम फैच करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि ये डेली डेटा है जहां पे 10 जून, 13 जून, 14 जून, 15, 16, 17 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, अगर ये रेशियो 1 के ऊपर है, दैट मींस एफआईआई लॉन्ग जो है वो ज्यादा है, और 1 के नीचे का है जो दिखाता है कि एफआई शॉर्ट्स ज्यादा है। यानी कि 1 के ऊपर ऐसा है कि एफआई के लॉन्ग जितने हैं उतने ही शॉर्ट हैं। अगर यही अगर नीचे है, 1 से नीचे है, तो हम ऐसा बोलते हैं, सपोज वो 9 पे है तो हम बोल सकते हैं कि 9 लोग हैं वो शॉर्ट है और 1 लोग है वो लॉन्ग है। तो ये जो अभी है ओवरसोल्ड सिनारियो दिखा रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि एफआई लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जून मंथ में, खास करके 15, 16, 17 जून में ये रेशियो पहुंच गया था 0.13। अभी ये क्या इंडिकेट करता है? अगर हम 100 को एक बेंचमार्क बनाए तो 100 पोजीशन में से 13 ऐसी पोजीशन थी कि जहां पे लॉन्ग थी एफआई की, और ऑलमोस्ट 87 पोजीशंस वर शॉर्ट। तो शॉर्ट का जो रेशियो था एफआई की तरफ से काफी एक एक्सट्रीम हो गया था हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है कि ये लेवल, एक 2 का लेवल जो है वो एवरेज लेवल रहता है जहां पे एफआई ज्यादातर लॉन्ग साइड पे ज्यादा रहती है। लेकिन जून 2020 में हुआ ऐसा कि आउट ऑफ 100 पोजीशंस 13 पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी और 87 पोजीशन शॉर्ट साइड पे थी। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो जितना शॉर्ट एफआईआईज ने किया है, जितना 87% ऑफ द पोजीशंस वर ऑन द शॉर्ट साइड, तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन एक शार्प शॉर्ट कवरिंग में आ सकता था। तो इसको भी एक ओवरसोल्ड इंडिकेटर के तौर पे दिया कि इतने से ज्यादा एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट नहीं करती है। एक हिस्टोरिकल लेवल देखने जाए तो इट वाज द लोएस्ट लेवल सिंस लास्ट मेनी मंथ, और उसको देख के भी हमको लगा कि यहाँ पे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर कुछ मार्केट में पॉजिटिव आ गया न्यूज। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जुलाई मंथ में धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखे और हमने एक शार्प शॉर्ट कवरिंग खास करके डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट में देखी। तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी एक्चुअली टर्न बुलिश इन द मंथ ऑफ जुलाई।
Now, friends, this is one another concept I would like to share, which is called intermarket analysis. Now, what is intermarket analysis? It is important to know. First of all, I'll go through the slide, the write-up, and will explain you how does it work to know about the markets for predicting the futures. Now, intermarket analysis is a method of analyzing markets by examining the correlation between different asset class. In other words, what happens in one market could and probably does affect other market also. So study of relationship could prove to be beneficial to the trader. Intermarket analysis looks at more than one related asset class or financial market to determine the strength or weakness of the financial markets or asset classes being considered. Instead of looking at financial markets or asset class on the individual basis, intermarket analysis looks at the several strongly correlated markets or asset classes such as stocks, bonds, currencies and commodities. तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक एसेट क्लास पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। अगर आपको ओवरऑल मार्केट पे व्यू लेना है तो अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देखोगे, उसके ऊपर आरएसआई, एमएससीडी या एमएफआई डाल के मार्केट पे व्यू लेना चाहोगे नेक्स्ट 1 या 2 महीने के लिए, तो इतना इनफ नहीं है। वर्ल्ड में अभी ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड काफी नजदीक आ रहा है, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल इवेंट्स, और हम फेड में क्या हो रहा है या किस तरह का सिनारियो, कैसी इकोनॉमी जापान की परफॉर्म करे, यूएस की करे, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड मार्केट्स वेरी मच एंड वी शुड ट्रैक डिफरेंट अंडर एसेट क्लासेस अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनमें हमारा कोरिलेशन देखना है कि अगर बॉन्ड में बढ़ोतरी होती है तो उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में क्या आ सकता है, अगर गोल्ड बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स में क्या होता है। तो ये काफी जरूरी हो जाता है टू टेक अ व्यू ऑन ओवरऑल मार्केट, वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अंडरलाइन टू ट्रैक फॉर इंटरमार्केट एनालिसिस, तो मैंने जैसे बताया कि कमोडिटीज को भी हमको ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हम जो ट्रैक करते हैं, जो इंडिया को खास करके इफेक्ट करती है, विच इज ब्रेंट क्रूड। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नेट इंपोर्टर, वी आर डिपेंडेंट हेवीली टू द गल्फ कंट्रीज फॉर इंपोर्टिंग द क्रूड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ब्रेंट क्रूड एक लेवल से नीचे आता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होता है, वी ऑल नो, वी शुड नो दैट। अगर गोल्ड में प्राइस राइज होता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक इन्फ्लेशनरी हेज के तौर पे गोल्ड को लिया जाता है और उस तरह से हम व्यू लेते हैं। कॉपर को हम मिस्टर कॉपर, एक डॉक्टर कॉपर कहते हैं, सॉरी। तो डॉक्टर कॉपर का मतलब ये है कि अगर कॉपर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दैट मींस ओवरऑल इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड इज डूइंग वेल। इफ डॉक्टर कॉपर इज गोइंग डाउन, इफ कॉपर इज मूविंग डाउन, देन वी कैन से दैट ओवरऑल इकोनॉमी इज नॉट स्ट्रांग एंड ग्रेजुअली कॉपर के ट्रेंड के साथ ही इक्विटी मार्केट का ट्रेंड जा सकता है। तो लेट अस लुक एट सम डेवलपमेंट्स ओवर हियर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इंटरमार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे ये सिंपली मैं ब्रेंट क्रूड का चार्ट ओपन करूंगा, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ ब्रेंट क्रूड। सो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं कि ये जो जिस तरह का ये कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में से नीचे की और ब्रेकडाउन देने का ट्राई कर रहा है। जैसे ही ब्रेंट क्रूड 94 के नीचे जाता है तो दिस विल बी अ ब्रेकआउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑन द डाउन साइड। सो ऑब्वियसली अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें तो एक फॉलिंग क्रूड इज अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट, तो इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पे हम गिन सकते हैं। अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से एक प्रीवियस बॉटम को खींच के ऐसा अगर देखते हैं तो it has just given a breakdown on the lower side, so it is a good sign which is confirming the upcoming bullishness in the equity market। तो एक जो asset class है वो इस तरह से indicate कर रही है। दूसरी asset class I would like to share is the DXY। दोस्तों DXY is nothing but the ICE डॉलर इंडेक्स। हम सब जानते हैं कि मार्केट में जब अनसर्टेनिटी शुरू हुई थी 2022 में, जनवरी 2022 से लेके जून 2022 में जो अनसर्टेनिटी रही, जो वॉर का इन्फ्लेशन सिनारियो रहा, 40 साल के रिकॉर्ड पे इन्फ्लेशन चल रहा था अराउंड द वर्ल्ड, तो वहां पे कौन सी एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रही थी? तो हम सब जानते हैं जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाली एसेट क्लास रही है वो डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर अगेंस्ट द यूरो, डॉलर अगेंस्ट द येन एंड द अदर करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, वो काफी परफॉर्म जबरदस्त कर रहा था। फ्रॉम द लेवल ऑफ 90 इट वेंट टू एज हाई एज 108। तो बढ़ता हुआ डॉलर इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट ला रहा था। और हम पिछले दिनों देख पा रहे हैं कि पिछले दिनों से डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है, जहां पे हमने क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्जेंस देखा है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल इंडिकेटर वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ।
ये है RSI वीकली बेसिस पे 14 वीक की RSI, और ये डॉलर इंडेक्स ने जिस तरह से एक हायर टॉप बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द हायर टॉप फॉर्मेशन ऑन द डॉलर इंडेक्स ऑन द प्राइस वाइज। और अगर हम RSI देखें तो RSI ने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया है बाय फॉर्मिंग द लोअर टॉप, एंड इफ वी एडजॉइन द प्रीवियस bottoms in RSI, then this trend breakdown is also observed on the DXY chart. तो अभी भले ही जो डॉलर इंडेक्स 108 के लेवल से 105 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स इज टॉप्ड आउट और यहाँ से नीचे जाना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स घटता है, दैट मींस अनसर्टेनिटी अराउंड द वर्ल्ड इज गोइंग डाउन, और दूसरी एसेट क्लास के तौर पे हम इक्विटी मार्केट में या गोल्ड में या दूसरे एसेट क्लासेस में बाइंग देख सकते हैं। तो दिस इज वन इंडिकेटर विच एक्चुअली वी सॉ, वहां पे डाइवर्जेंस था, इसीलिए हमने इक्विटी मार्केट पे कुछ एग्रेसिव व्यू बनाए थे जुलाई मंथ में, और अभी भी ऐसा ही इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा जो इंडिकेटर हम इंटर मार्केट एनालिसिस में एसेट क्लास देखनी चाहिए, वो है यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। लेट मी शो यू द चार्ट। फ्रेंड्स, अभी जो यूएस का जो 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है वो 2.8 पे चल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, दैट मींस इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड यील्ड घट रहा है तो इंटरेस्ट रेट घट रहा है। तो अभी इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ रहा था कि इन्फ्लेशन काफी एक स्ट्रॉन्ग था और काफी सारी जो फेड की तरफ से एक्शन हुई, वहां पे हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड मोर देन 3 के लेवल के ऊपर चला गया था, और ग्रेजुअली इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो यहाँ पे भी देखिए आप एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का एक डेवलपमेंट दिख रहा है RSI में। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है ऑन द वीकली चार्ट। अभी हम थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें तो हम बॉन्ड में भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हिस्टोरिकल बेसिस पे अच्छे काम करते हैं। सो लुक एट दिस इज अ 2018। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीबन 3 के करीबन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का जहाँ पे टॉप आउट हुआ था, और 3 से लेके ये नीचे गया था 0.31 तक। अभी वापस से 0.31 से हम 3 के लेवल पे देख रहे हैं लेवल, और वहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। दैट मींस दिस अंडरलाइंग व्हिच वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल अलोंग विद द डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, दो इंडेक्स थे जो मार्केट जब बेरिश फेज में था तब आउट परफॉर्म कर रहे थे, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि इट हैज रीच्ड द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2018 के टॉप पे आने के बाद एक नेगेटिव डाइवर्जेंस और एक शूटिंग स्टार कैंडल ऑन द वीकली चार्ट। तो एक डेवलपमेंट नेगेटिव साइड का बन रहा है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो मे बी टॉप आउट हो गए हैं या तो आने वाले टाइम में होने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी इस तरह की ज्यादा बन रही है। तो यहां से भी हम मालूम कर सकते हैं कि जो रिस्क ऑफ ट्रेड था वो अभी रिस्क ऑन ट्रेड में मूव हो रहा है। तो इक्विटी मार्केट के सेंटीमेंट डॉलर इंडेक्स के घटने से और यूएस का बॉन्ड यील्ड घटने से डेफिनेटली इंप्रूव होते हैं। नाउ लेट अस मूव बैक टू आवर स्लाइड्स। तो हमने बॉन्ड डिस्कस कर लिया। यस, डेफिनेटली वी शुड आल्सो लुक एट द चार्ट ऑफ यूएसडी एनआर। तो डॉलर के सामने रुपी कैसे परफॉर्म कर रहा है, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। Another development, not development, but another asset class I would like to all of you to look at is the MSCI emerging market. कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जो ओवरऑल व्यू प्रोवाइड करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल क्या कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली डाउ को देखने जाए, निकाई को देखें, कोरिया, ताइवान, इंडिविजुअल चार्ट देखने जाओगे तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि MSCI की तरफ से डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जो वर्ल्ड मार्केट, इमर्जिंग, डेवलप्ड मार्केट्स और कंबाइंड वेट ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड मार्केट्स के इंडेक्सेस दिए गए हैं जो हम ट्रैक कर सकते हैं। इनमें से एक इंडेक्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये है MSCI का ACWI चार्ट, एक ऑल कंबाइंड वर्ल्ड इंडेक्स चार्ट। अभी ऑल कंबाइंड वर्ल्ड इंडेक्स MSCI का जो चार्ट है ये कैप्चर करता है लार्ज एंड मिड कैप रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस 23 डेवलप्ड मार्केट्स। मतलब टोटल 23 डेवलप मार्केट का वेट है इसमें, और 24 इमर्जिंग मार्केट का वेट है। अगर हम सब कंबाइन करें तो उसके बेस पे एक इंडेक्स बना गया है, और ऑब्वियसली जो बड़ा मार्केट है उसको वेट ज्यादा दिया गया है और इमर्जिंग मार्केट को वेट कम दिया गया है। लेकिन ये भी एक इंडेक्स है जो हमको ओवरऑल आइडिया दे सकता है। दोस्तों देख सकते हैं कि जून 2022 में इस इंडेक्स ने बॉटम बनाया और वहां से ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। दैट मींस वर्ल्ड मार्केट इज गोइंग अप। अभी ये क्या था वो इंपॉर्टेंट है टू नो। अभी देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मैंने इस चार्ट पे ड्रॉ की है। नाउ दिस इज द अक्टूबर 2020 टॉप and this is a January 2020 top. January 2020 is the pre-pandemic top which we saw in this world market index.
उसको देखें तो ये अक्टूबर और जनवरी 2020 की टॉप जो थी उसको जोड़ते जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाते हैं, वहां ही एग्जैक्ट जून 2022 में हमने देखा कि MSCI ACWI इंडेक्स ने बॉटम बनाई और वहां से इट स्टार्टेड रिकवरिंग और एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा। RSI हमने देखा कि एक ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे RSI इस इंडेक्स की ओवरसोल्ड हो गई थी और हमने ट्रेंड लाइन बनाई है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आते हुए देखा। तो इट इज अ क्लियर कट साइन, RSI की तरफ से हमने ओवरसोल्ड से एग्जिट किया, उसके बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट से बाउंस किया। दैट मीन्स अभी जो भी डेवलपमेंट, अभी भले ही हम वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन मार्केट, बट वर्ल्ड मार्केट की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं they will also remain stable in the coming times, and overall scenario and the sentiment of the equity markets in India will remain positive because we are getting confirmation from the world market also. So friends, now I would like to share some success mantra. As we have been tracking technical tools and indicators, we are obviously doing short term trading and positional trading. So I would like to show you some developments and the overall success mantra in positional trading. So friends, मैं brief रहूंगा, मैं short में समझाऊंगा. Don't complicate charting by adding too many indicators. ज्यादा इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर डालने से आप सक्सेस ज्यादा ले पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है. सिंपल रखना चाहिए, 2-3 इंडिकेटर जिसके पास अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ही आप चार्ट पे ऐड करो. जैसे आपने प्राइस चार्ट पे मूविंग एवरेज डाली, तो ज्यादा मूविंग एवरेज मत डालो, 2 से 3 मूविंग एवरेज डालो. एक RSI इंडिकेटर सपोज आपने ऐड किया है, तो और दूसरा MFI इंडिकेटर डाल सकते हो, या तो जिस ADX इंडिकेटर डाल सकते हो. RSI, MFI और ADX ये तीनों इंडिकेटर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेशन कर रहे हैं. अगर आप RSI के साथ स्टोकेस्टिक और CCI डालोगे, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, तो तीनों जो इंडिकेटर है अल्टीमेटली सेम पर्पस सर्व कर रहे हैं, तो उसको देखने की मतलब नहीं है. आप ऐसे इंडिकेटर डालिए कि जिसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो. तो मेरे हिसाब से ज्यादा 2 या 3 इंडिकेटर आप डालिए. RSI डालते हैं, उसके बाद ADX आप डाल सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो इंडेक्स आप निफ्टी या कोई भी स्टॉक के चार्ट पे डालिए, तो आप बेटर व्यू ले सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर अंडरलाइन. फॉलो अ किस प्रिंसिपल. अभी ये किस क्या है? कीप इट सिंपल स्टूपिड. तो बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करने से माना जा रहा है कि मोस्ट सिस्टम वर्क बेस्ट इफ दे आर केप्ट सिंपल rather than made complicated. Therefore, simplicity should be a key goal in design and unnecessary complexity should be avoided. अगर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने जाओगे, दुनिया भर के इंडिकेटर आप यूज करने जाओगे, तो आपकी सिस्टम और आपके रूल्स जो है ट्रेडिंग के, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और अल्टीमेटली आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. सो बेटर टू कीप योर ट्रेडिंग स्टाइल वेरी सिंपल and keep it simple. Stupid is a principle that we need to follow. Don't just rely on one indicator. At least 2-3 indicators should give confirmation. तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि if we are getting some positive indication from the seasonality chart कि जुलाई मंथ बहुत अच्छा रहता है, उसमें पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं, 70% ऑफ द टाइम पॉजिटिव बंद आता है, तो इसके बेस पे अकेले पे व्यू नहीं लेना चाहिए. इफ वी आर गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द प्राइस चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, सम ऑफ द इंडिकेटर्स लाइक ब्रेथ इंडिकेटर्स ऑफ 200 डेज मूविंग एवरेज, तो ही आप 2-3 कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप उसके ऊपर एक्ट करो. एक ही इंडिकेटर को बाय सिग्नल देने से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती. मेक अ सेट ऑफ रूल और मॉडल फॉर ट्रेडिंग एंड फॉलो इट विदाउट फेल. तो आप एक फिक्स रूल बना दीजिए कि अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है, प्राइस अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, 8 दिन की एवरेज जो है वो 21 डेज की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, ऐसे सेट ऑफ रूल बनाइए, 4-5 रूल बनाइए और उसको रिलीजियसली फॉलो करिए विदाउट फेल. अगर आपका कोई भी बाय कॉल या सेल कॉल इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ही उसकी और आप एक्ट कीजिए, या तो बाय साइड या तो सेल साइड, और आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए. ट्राई टू लर्न इंटर कोरिलेशन बिटवीन वेरियस एसेट क्लास. जैसे मैंने इंटर मार्केट एनालिसिस में आपको शो किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर रहे हैं तो इंडिया को क्या इफेक्ट आ सकती है इक्विटी मार्केट में. अगर यूएस के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर घट रहा है, तो क्या इंपैक्ट आ सकता है. तो एवरी एसेट क्लास इज इंटरकनेक्टेड. अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद द डॉलर इंडेक्स. तो अगर हमने देखा है कि पिछले दिनों से $1700 से अभी गोल्ड $1800 के करीबन आ गया है, तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग इनवर्स कोरिलेशन. अगर डॉलर इंडेक्स घटता है तो गोल्ड बढ़ सकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जो अल्टीमेटली आपको मार्केट का पिक्चर या सिनेरियो समझने में हेल्प करेगा.
Risk management, position sizing, and money management are the key towards successful trading and investment. दोस्तों आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस कर लो, लेकिन ट्रेडिंग में मोर देन 70% मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट है. अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, कितना भी आपने एनालिसिस सही कर लिया, कितना भी इंडिकेटर अच्छा यूज कर लिया, बट इफ यू डोंट अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली, अगर मार्जिन का कॉल आता है तो स्क्वायर इट ऑफ, अगर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन साइजिंग. Before entering into trade, you should know that how much loss you can bear. So before deciding the target of your call, decide the stop loss which you can bear. कितना लॉस आप एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे ले सकते हो और आपके टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको एक ट्रेड में डालना चाहिए. तो ये सब आपको पहले डिसाइड करना है और उसके बाद ही आप उसका टारगेट डिसाइड कीजिए और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, एक सिस्टम मशीन ट्रेडिंग की तरह पे कीजिए, तो ही आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल आउटपुट मिलेगा. So this was the success mantra according to me for the positional trading. दोस्तों, this was the all thing I wanted to share with you, and thank you very much Spider Academy for inviting me and give me the opportunity to share my view on markets, and it was a nice session and organized by Spider Software. It's a nice initiative also. I encourage this kind of webinars, और ऐसे ही वेबिनार करते रहने से हमारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को अच्छी नॉलेज मिलेगी और वैसे ही आने वाले मार्केट में, जो बुल मार्केट आने वाला है इंडिया में, उसका फायदा अच्छी तरह से ले पाएंगे. सो थैंक यू अविनाश, थैंक यू स्पाइडर एकेडमी फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेबिनार. ओवर टू यू अविनाश.